Good morning, everybody. So today we will discuss optic sign determination of biaxial mineral. So you must have watched my previous video in which I have already discussed the optic sign of uniaxial mineral. So biaxial minerals, as you know, it possesses two optic axes, as the name implies. Biaxial means there are two optic axes and there are three directions of vibration: X, Y and Z. So there are two optic axes and three directions of vibration: X, Y and Z. The velocity of light along X is maximum and the velocity of light along Y is of intermediate value, whereas the velocity is minimum along Z. And just reverse, if we take the refractive indices along these three directions, so along X, corresponding to X, the refractive index is known as alpha. Along Y, it is known as beta, and along Z, it is gamma. So the value of alpha is minimum, the value of gamma is maximum, whereas beta value is intermediate between the two. Now question is, what is biaxial positive and biaxial negative minerals? So very simple, biaxial positive minerals are those minerals in which the slow vibration direction, that is Z, it becomes acute bisectrix. Acute bisectrix means the Z vibration direction bisects the optic axial angle 2V. तो 2V को जो ऑप्टिक एक्सियल एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल. You see, this is the indicatrix. Already I have discussed the optic indicatrix in my previous lecture. So this is Z vibration direction. That is why this is longest. We have taken the gamma value. So this is gamma value. This is alpha value. This one is alpha value. So the length of this alpha is small, and this is in between the two. That is Y. So if Z vibration direction, this is the Z vibration direction, this is X vibration direction. So if Z vibration direction, this vibration direction becomes acute bisectrix, the mineral will be called positive. Whereas if the X vibration direction bisects the optic axial angle, that is 2V, the mineral is said to be negative. So very simple criteria. So with the help of this simple diagram, we can understand what is uniaxial positive and uniaxial negative. So this is uniaxial positive mineral. You see, this is 2V, optic axial angle, and this plane, the plane of this writing board, this is optic axial plane. This is called optic axial plane. So in optic axial plane, the fastest and the slowest vibration direction, they lie in the optic axial plane. So this is Z vibration direction, this is X vibration direction, and Y is always perpendicular to this plane. जो इंटरमीडिएट वाला है, इंटरमीडिएट वाइब्रेशन डायरेक्शन Y, ये हमेशा ऑप्टिक एक्सियल प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है. तो इसीलिए जब भी होगा जो बाइसेक्टर होगा, 2V का जो बाइसेक्टर होगा, ये आइदर X होगा या फिर Z होगा. तो इस केस में Z इज द बाइसेक्टर. तो इफ Z is the bisector, then the mineral is said to be positive. And this is negative mineral. This is negative mineral. You see, now the acute angle is this one, 2V is this one. In this case, this X यानी maximum जो vibration direction है, maximum velocity वाला
जो डायरेक्शन है x, this is the bisector. It means fast vibration direction becomes acute bisectrix. So the mineral will be said to be negative. So this is very simple criteria of being positive and negative. Now how can we determine the optic character of biaxial minerals, whether the mineral is positive or negative? Because it is one of the important optical properties which is used in the identification of minerals. So we must know whether the mineral is positive or negative. So for determination of this optic sign, first of all, we must observe the mineral under convergent polarized light. Convergent polarized light and conoscopic setting must be there. In my previous lecture, I have already discussed what is conoscopic arrangement. So in conoscopic arrangement, what happens? We use analyzer, we use Barton lens. Barton lens, it is just above the analyzer. This is Barton lens. High power objective is used. High power objective and of course condenser lens. Condenser lens. So this is the setting. So if we use condenser lens for obtaining convergent polarized light and we see the entire scene in the cross equal position, that is analyzer is used. Barton lens, ये भी एक डिवाइस है माइक्रोस्कोप में, एनालाइजर के ठीक ऊपर एक लेंस सिस्टम है which is used to convert the convergent polarized light into parallel light again. तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं Barton लेंस को, and it is observed under high magnification. So high power objective is used. तो ये अगर कोनोस्कोपिक सेटिंग में अगर हम लोग देखें मिनरल्स को, तो certain type of figure we can observe, and it is known as interference figure. And in biaxial mineral there are two important sections जिसको कि हम लोग इसमें इसका जो इंटरफेरेंस फिगर है वो ऑब्टेन करते हैं. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सेक्शन. पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है जो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है उसके परपेंडिकुलर सेक्शन. जैसे मान लीजिए कि यही जेड वाइब्रेशन डायरेक्शन है और ये एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स भी बना रहा है, तो द सेक्शन मस्ट बी लाइक दिस. जो मिनरल सेक्शन है इट शुड बी लाइक दिस. Okay, so the acute bisectrix is just perpendicular to the section. तो एक सेक्शन ये हो सकता है. So this section, this is the interference figure when section is perpendicular to acute bisectrix. So this is very important section. दूसरा जो सेक्शन हम लोग जो देखते हैं वो है perpendicular to one of the optic axis. दो ऑप्टिक एक्सिस है, तो किसी भी एक ऑप्टिक एक्सिस, जैसे एक ऑप्टिक एक्सिस ये है और सपोज दूसरा ऑप्टिक एक्सिस ये है, देन द सेक्शन मस्ट बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू एनी वन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस. सो entirely different type of interference figure will be produced when we view this type of section that is perpendicular to the acute bisectrix. तो इसको देखिए आप, ये जो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स इंटरफेरेंस फिगर है उसमें क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ यूनिएक्सियल इंटरफेरेंस फिगर, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस आल्सो. हियर यू कैन सी दिस ब्लैक क्रॉस which is known as isogyre. Isogyre, तो आइसोगायर यहां भी डेवलप होता है, लेकिन डिफरेंस है बाई एक्सियल का जो आइसोगायर है और यूनी एक्सियल का जो बेसल सेक्शन में हम लोगों ने देखा है इंटरफेरेंस फिगर, उसका जो आइसोगायर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इन बाई एक्सियल द वर्टिकल ब्रूस, वर्टिकल जो ये है डार्कनेस है, इट इज फेंट, कंपैरेटिवली फेंट एंड पुअरली डिफाइंड. सो दिस इज पुअरली डिफाइंड
एंड ये वाइड है, इट इज वाइड ऑल्सो, चौड़ा है लेकिन थोड़ा पुअरली डिफाइंड है। और इधर से जो हॉरिजॉन्टल वाला जो आर्म है इसका आइसोगायर का, दैट इज कंपैरेटिवली थिन बट वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। तो ये बात हुआ। दूसरी चीज ये है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जिसके अबाउट देयर आर सर्टेन कंसेंट्रिक रिंग्स, these two points are the point of emergence of the optic axis. So this is points of emergence of optic axis, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेलाटोप। So these 2 points are known as melatopes. Okay? और ये जो मेलाटोप है, इसके अबाउट देयर आर सर्टेन कंसेंट्रिक रिंग्स, और यहां पर देखिए एक इसके अराउंड है, दूसरे इसके अराउंड है, और सिमिलर है। कैसे ये बनता है जो कंसेंट्रिक रिंग्स है? तो बहुत सिंपल है कि जो दो रे है, नेबरिंग रे, एक का O दूसरे का E, ये जब कोइंसाइड करेगा तो वहां पर डार्कनेस रिजल्ट होगा, एंड दीज कंसेंट्रिक रिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ सच कोइंसिडेंस। मतलब एक का O बगल वाले का जो नेबरिंग रे है उसके E के साथ कोइंसाइड कर रहा है व्हाइल लिविंग द सेक्शन। तो ये है, और ये जो इसमें है इसको देखिए, तो यहां पर देयर आर सर्टेन कंसेंट्रिक रिंग्स, देयर आर कंसेंट्रिक रिंग्स, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, इट टेक्स द शेप ऑफ 8 जो फिगर है लाइक दिस, 8 ऐसा होता है लाइक दिस, तो ये 8 का शेप ले लेता है। एंड दिस फर्स्ट रिंग, ये जो फर्स्ट रिंग है, this is known as lemniscate. This is called lemniscate. So this is called lemniscate. तो lemniscate जो है, this is the first ring around the optic axis. This is called lemniscate. And the phase difference between O and E here is 1 lambda. तो whole number का ही होता है हर जगह। तो this is the first ring which is known as lemniscate. अब ये जो पोजीशन है इंटरफेरेंस फिगर का, इट इज नॉट ऑल द सेम व्हेन वी रोटेट द स्टेज। बाय यूनिएक्सियल के केस में हमने देखा है कि अगर स्टेज को आप रोटेट भी करते हैं, बेसल सेक्शन अगर है एंड बिल्कुल कोनोस्कोपिक सेटिंग में अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन इफ वी रोटेट द माइक्रोस्कोप स्टेज, सो देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पोजीशन, नो चेंज इन इट्स फेस। But in this case, in the case of biaxial interference figure, what happens? This is the position in 90 degree. So this is 90 degree position. देखिए ये, लेकिन अगर हम लोग सपोज स्टेज को हम लोग घुमा दें लाइक दिस, अगर ये 45 डिग्री हम इसको यहां से इस इनिशियल पोजीशन से अगर घुमा दें, तो व्हाट विल हैपन? दिस टाइप ऑफ फिगर विल अपीयर। क्या होता है कि ये जो आपका आइसोगायर है, विच आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो ये जो आर्म है, दिस आर्म एंड दिस आर्म, दे आर ब्रोकन डाउन, और ये इट टेक्स द शेप ऑफ हाइपरबोला। तो ये एक हाइपरबोला ये डेवलप हो गया, दूसरा हाइपरबोला ये डेवलप हो गया, ओके। और जो रिंग्स थे, ये जो ऑप्टिक एक्सिस है, ये ऑप्टिक एक्सिस का इमर्जेंस है, ये दोनों मेलाटोप है, मेलाटोप। तो अब ये दोनों जो मेलाटोप है उसका ओरिएंटेशन ये हो गया। एंड यू मस्ट नो कि अगर दोनों मेलाटोप को हम ज्वाइन कर दें, these are two optic axis, this is the emergence of optic axis on the section, this is emergence of second optic axis on the section. So if we join it, so the line joining these 2 points will define the trace of optic axial plane. So here the optic axial plane, in this case the optic axial plane is like this, this is OAP. So this is optic axial plane. In this case, this will be the optic axial plane, OAP is like this.
इसको हम इधर भी कर सकते थे, वो भी हो सकता है। So this is the interference figure of biaxial mineral which is cut perpendicular to the acute bisectrix. Follow? तो इसको हम यूज करेंगे in the determination of optic sign कि कैसे मिनरल पॉजिटिव या निगेटिव है। तो ये जो इंटरफेरेंस फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये जो पोजीशन है 45 डिग्री जो पोजीशन है इसमें हम लोग यूज करेंगे। नाउ दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेक्शन which is also used in the determination of optic sign. So this section is perpendicular to the optic axis. आपको मैंने बताया कि दो ऑप्टिक एक्सिस है, तो किसी भी एक ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सेक्शन है, if it is observed under the same setting, कोनोस्कोपिक सेटिंग, तो क्या होगा, इस तरह के फिगर मिलने की संभावना है। जो इंटरफेरेंस फिगर है इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी लाइक दिस। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है कि ये जो आइसोगायर है सिंगल आइसोगायर है, इट कंटेन्स or it consists of a single isogair, and these are different concentric rings, and this is the at the center, this is the point of emergence of the optic axis. This is optic axis. Since the section is perpendicular to the optic axis, so the emergence of the optic axis will be just at the center. तो लेकिन इस तरह का जो है straight arm of the isogair, ये कब होता है, when the angle between the two optic axes are almost 90 degree. ठीक है, एक तो पोजीशन ये हो सकता है, एक्यूट एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, but it is also possible that the angle between these two axes, that is optic axial angle, it is almost 90 degree. तो अगर ये almost 90 degree होगा, when 2B is near 90 degree, almost 90 degree, in that case the isogair will be straight. But this is a rare case, ऐसा generally कम ही मिलता है मिनरल में, लेकिन ऐसा है then it is not suitable for the determination of optic sign. So it is rare and very difficult to determine the optic sign. Okay, दूसरा जो पोजीशन है ये है, ये कॉमन है, ये 2B जो है 90 से कम होगा, दिस इज 2B। तो जो 2B है एक्यूट एंगल वाला जो है एंगल, उसी को 2B बोलते हैं, ऑप्टिक एक्सियल एंगल। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव 2B। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन। इससे भी समझ में आती है बात। देखिए ये दो ऑप्टिक एक्सिस है, ये व्हाइट वाला थ्रेड जो है एक ऑप्टिक एक्सिस, दिस इज अनदर ऑप्टिक एक्सिस, और ये इस केस में देखिए ये एक्यूट एंगल बन रहा है। तो एनीवे तो इसमें क्या होगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, है ही है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये कब होगा, जब ऑप्टिक एक्सियल एंगल दैट इज 2B ये 90 से कम हो। In that case, this type of interference figure will appear. तो इसमें जो है ये जो आइसोगायर है ये हाइपरबोलिक फॉर्म का होगा, it will not be straight, और ये जो हाइपरबोला होगा, और उसके बाद ये जो सेंटर्स है उसके चारों तरफ ये रिंग्स हो सकता है। अब चाहे इसको यूज करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिक साइन, and if we use this section perpendicular to the acute bisectrix, तो ये वाला पोजीशन आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो आइदर इसको या इसको इस पोजीशन में रख के वी कैन डिटरमिन द ऑप्टिक साइन ऑफ बाइएक्सियल मिनरल। सो लेट अस सी हाउ कैन वी यूज these two figures in the determination of optic sign. Okay, you see we can use this interference figure, that is सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्यूट बाइसेक्ट्रिक, और इसमें ये पोजीशन में आप ले सकते हो 45 डिग्री पोजीशन, ये हो सकता है, या दूसरा पोजीशन ये हो सकता है। These two positions, any of the position may be used in the determination of optic sign.
and there are three types of plate: accessory plate, mica plate, gypsum plate, and quartz vase. Gypsum plate is also known as sensitive tint. So we have discussed it. तो ये तीन तरह के एक्सेसरी प्लेट्स हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं इन द ऑप्टिक साइन डिटर्मिनेशन. लेकिन ये जो इंटरफेरेंस फिगर है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्यूट बाइसेक्ट्रिक, तो इसमें जनरली ये जो है ज्यादा सुटेबल है. use of this quad wave is most commonly used in the determination. So you see, suppose this is the interference figure in 45 degree position. पीछे हम लोग देखें तो इस 45 डिग्री पोजीशन में जैसे देखें हम लोग, सपोज ये पोजीशन है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट आपको मैंने अभी बताया, ये क्या है, दीज आर द मेलाटोप. मेलाटोप यानी पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस है. और सेंटर में कौन सा है, ये सेंटर में दिस इज द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स. तो अगर हम लोग इसको और इसको ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन होगा दैट विल बी ट्रेस ऑफ द ऑप्टिक एक्सियल प्लेन. दिस इज ऑप्टिक एक्सियल प्लेन. सो दीज टू मेलाटोप्स इफ दे आर ज्वाइंड इट विल गिव द ट्रेस ऑफ द ऑप्टिक एक्सियल प्लेन. और आप जानते ही हैं कि ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में अगर ये अगर ऑप्टिक एक्सियल प्लेन है तो इसमें कौन कौन से दो वाइब्रेशन डायरेक्शन होंगे, एक जेड होगा और दूसरा एक्स होगा. यही दो होता है. वाई हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है. तो इफ इट इज द ट्रेस ऑफ द ऑप्टिक एक्सियल प्लेन तो इसमें चाहे एक्स हो सकता है ना, इसके अलोंग पैरेलल टू दिस लाइन एक्स हो सकता है या फिर जेड हो सकता है. तो हम मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग the mineral is positive. तो if the mineral is positive, तो ये जो यहाँ point of emergence of the acute bisectrix है, ये कौन सा होगा, Z होगा. By definition, positive mineral में Z is the acute bisectrix. So Z will emerge from this point. Okay. तो इसका मतलब हुआ कि इसके पैरेलल जो trace of the optic axial plane है उसके पैरेलल X होगा. Okay. तो अब आइए, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो मिनरल है इट इज पॉजिटिव मिनरल. अब हम यूज कर रहे हैं क्वार्ट्ज वेज. दिस इज ए क्वार्ट्ज वेज. दिस इज वेज शेप्ड क्वार्ट्ज प्लेट. तो इधर थिनर एंड होता है और इधर थिकर एंड होता है. तो इफ वी इंसर्ट स्लोली अलोंग दिस लाइन, ये लाइन कौन सा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लॉट और यही वाई का भी डायरेक्शन हो जाएगा. अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि ऑप्टिक एक्सियल प्लेन में कौन कौन से दो वाइब्रेशन डायरेक्शन हैं, जेड एंड एक्स, एंड परपेंडिकुलर टू दिस ऑप्टिक एक्सियल प्लेन कौन सा डायरेक्शन है, वाई. तो इसीलिए ये अगर ऑप्टिक एक्सियल प्लेन है तो इसका ठीक ये परपेंडिकुलर ये जो स्लॉट का डायरेक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वाई के डायरेक्शन हो जाएंगे. इफ द मिनरल इज पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव मिनरल. और ठीक उल्टा केस होगा निगेटिव, जो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं. तो आप देखें व्हाट विल हैपन. अब अगर इसमें हम स्लोली अगर इंसर्ट कर रहे हैं क्वार्ट्ज वेव को, और क्वार्ट्ज वेव का ये वाइब्रेशन डायरेक्शन नोटेड रहता है, यहाँ पर जैसे एरो लगा हुआ है. सो दिस इज द स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ क्वार्ट्ज वेव.
और ठीक इसके परपेंडिकुलर फर्स्ट वाइब्रेशन डायरेक्शन होगा। तो अब इसको अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो अब आप देखिए कि इसमें और इसमें आउट ऑफ द टू, अब हमारे पास इन दो डायरेक्शंस में इफ द मिनरल इज पॉजिटिव, हमारे पास दो डायरेक्शन है, वन इज एक्स विच इज फास्टेस्ट, सेकेंड इज वाई विच इज इंटरमीडिएट मीन स्लो है उससे। तो अब ऐसा समझ लीजिए कि ये फास्ट है, ये स्लो है। अब इसको अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिल रहा है। स्लो ऑफ द प्लेट और स्लो ऑफ द मिनरल, ये स्लो है, इसकी तुलना में ये स्लो है। तो स्लो ऑफ द क्वाड्रेज एंड स्लो ऑफ द मिनरल प्लेट ये कोइंसाइड कर रहा है, ये मीन्स कि सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन कोइंसाइड कर रहा है 2 और 4 में। तो उसमें क्या होगा, इफेक्ट ऐसा होगा एज इफ द बायरेफ्रिंजियंस हैज इंक्रीज्ड। और उसका इफेक्ट क्या होता है, अगर बायरेफ्रिंजियंस इंक्रीज हो रहा है और यू आर स्लोली इंसर्टिंग द क्वाड्रेज इन द स्लॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लॉट। तो इसमें अगर आप स्लोली अगर इसको आप इंसर्ट कर रहे हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर इसमें, और इसमें अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, इट विल अपीयर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इफ द मिनरल इज पॉजिटिव दिस टाइप ऑफ इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। और ठीक उल्टा इफ द मिनरल इज निगेटिव, निगेटिव मिनरल होने से क्या होगा कि अब ये जो है जिस इन दो क्वाड्रेंट में सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रिंग्स था ये मूव कर रहा था टुवर्ड्स दिस सेंटर, ठीक उल्टा होगा इफ द मिनरल इज निगेटिव, यानी इन दोनों क्वाड्रेंट्स में अलग अलग नेचर का, इसका स्लो इसके फास्ट से कोइंसाइड करेगा। तो इफ द मिनरल इज नेगेटिव व्हाट विल हैपन, इट विल मूव लाइक दिस अवे फ्रॉम द सेंटर, और 1 and 3 में क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये पोजीशन भी ले सकते हो। दूसरा इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में भी निकाला जा सकता है। इस पोजीशन में सिर्फ मूवमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। इस पोजीशन में क्या हो रहा है कि ये जो स्लो है और ये इसका फास्ट है, मिनरल का ये फास्ट है, हमने घुमा दिया है जस्ट 90, तो अब ये इधर आ गया है ना। ये जो ऑप्टिक एक्सियल प्लेन है, इट इज लाइक दिस, दिस इज ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। तो अब स्लो ऑफ द क्वाड्रेज इज कोइंसाइडिंग विथ फास्ट ऑफ द मिनरल, अपोजिट नेचर का मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ये उल्टा मूव करेगा, ये अवे फ्रॉम द सेंटर इसमें और इसमें टुवर्ड्स द सेंटर। तो पॉजिटिव अगर है, लेकिन ये अगर आप इंटरफेरेंस फिगर का जो ओरिएंटेशन है आपने ऐसे रखा है, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विल बी देयर। एंड जस्ट अपोजिट इफ द मिनरल इज नेगेटिव। इस तरह से हम लोग इस सेक्शन से, इफ द सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, तो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स फिगर को यूज करके वी कैन डिटरमिन वेदर द मिनरल इज नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आ जाइए एक दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन आपको हमने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है कि कोई भी एक वाइब्रेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सेक्शन है। ये दो ऑप्टिक एक्सिस है, तो सेक्शन में भी लाइक दिस, ऐसे कटा है लाइक दिस। तो अब इसका मतलब वो सेंटर से कौन सा इमर्ज करेगा, ऑप्टिक एक्सिस इमर्ज करेगा फ्रॉम द सेंटर। तो आइए, और अब हमने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रेट अगर है आइसोगायरस दैट विल नॉट बी यूजफुल, आपको हाइपरबोलिक फॉर्म का होना चाहिए। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मिनरल कि अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा। तो सपोज द मिनरल इज पॉजिटिव, यहां पर हम लोग तीनों तरह के प्लेट को यूज कर सकते हैं, माइका प्लेट, जिप्सम प्लेट एंड क्वार्ट्ज बेस, तीनों को यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें आप, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द आइसोगायर, एंड डेलिबरेटली ओमिटेड द रिंग्स, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर दिखाने का, यहाँ दिखाए हैं।
इन दोनों में मैंने डेलिबरेटली जो रिंग्स है उसको हटा दिया है। एनीवे, तो दिस इज द आइसोगायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। तो अगर ये पोजीशन है तो आप समझ लीजिए कि जो इसका एक्यूट एंगल है, ये तो पहले बीच में क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस। यहां से ऑप्टिक एक्सिस निकलेगा, पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। तो यहां तो हो गया पॉइंट ऑफ इमर्जेंस ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, ठीक है। अब ये जो है, अब जो पोजीशन है एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स का और ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स का, उसको थोड़ा समझना होगा। तो द पोजीशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स विल लाई इन द क्वाड्रेंट इन विच दिस हाइपरबोला इज कन्वेक्स। तो जिस साइड कन्वेक्स है ना, कन्वेक्सिटी के साइड में द पोजीशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स विल बी देयर। ये देखिए, पोजीशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स किधर होगा, यहां होगा। और इस तरफ किधर होगा, जो कनकेव साइड है वहां पर पोजीशन होगा किसका, ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स का। तो ये दो चीज समझना है हमको कि दिस इज द पोजीशन ऑफ एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स। तो इसमें ये अब इस पर अगर हम लोग टैंजेंट ले लें, ये जो हाइपरबोला है उसके जो है वर्टेक्स पर इफ वी टेक द टैंजेंट, तो ये कौन सा होगा, इट विल बी वाई, यानी इंटरमीडिएट वाइब्रेशन डायरेक्शन। इंटरमीडिएट जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है उसका ये पोजीशन होगा। तो बट नेचुरल है कि ये अगर इसको हम लोग ले लें परपेंडिकुलर टू दैट, तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑप्टिक एक्सियल प्लेन। So this is trace of optic axial plane. Tangent ले लिए अगर इसके वर्टेक्स पे, तो that will be the direction of y. तो ये है, तो यहां से जो आपका रेज निकलता है, तो one of ray is parallel to the y and second one is parallel to obtuse bisectrix. दो रे है, तो एक जो है जो कि इधर इमर्ज कर रहा है अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स द कन्वेक्सिटी ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की कन्वेक्सिटी की तरफ जो रेज निकल रहा है, तो वन ऑफ द रे विल बी पैरेलल टू वाई एंड सेकेंड विल बी पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टू ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स। और ठीक यही चीज यहां भी होता है, यहां से जो रेज निकल रहे हैं मीन्स कन्वेक्स साइड ऑफ कनकेव साइड ऑफ द हाइपरबोला, उसमें क्या होगा कि वन ऑफ द रे विल बी पैरेलल टू द वाई एंड सेकंड विल बी पैरेलल टू द एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स। तो ये है। तो अगर मिनरल पॉजिटिव है एंड इफ वी आर यूजिंग माइका प्लेट, ये देखिए माइका प्लेट हम फर्स्ट केस में यूज कर रहे हैं, तो यहां पर एक ब्लैक स्पॉट अपीयर होगा, उस क्वाड्रेंट में अपीयर होगा जहां पे अपोजिट नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिल रहा है। यानी ये अगर स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन है, इफ इज स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन, तो यहां पर कौन सा मतलब है एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, कौन, चाहे एक्स होता है या वाई होता है, जेड होता है, यही होता है ना एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, आइदर इट में बी एक्स और इट में बी जेड। यहां पर हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, यानी कि ये जो है, तो यहां पर कौन सा है, ये एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है, यहां जेड होना चाहिए, यहां पर जेड होना चाहिए इफ द मिनरल इज पॉजिटिव, और दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स, तो यहां पर क्या होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए। तो अब इस डायरेक्शन में यहां पर एक्स है, फास्ट है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन क्वाड इसका माइका प्लेट का। सो यहां पर एक ब्लैक डॉट अपीयर होगा, सो ए ब्लैक डॉट अपीयर इन द क्वाड्रेंट वेयर opposite nature of vibration direction of the mineral and the mica plate is coincident. तो पॉजिटिव के केस में यहां पर आपको एक ब्लैक डॉट अपीयर होगा, लेकिन अगर उल्टा होता, ये अगर मिनरल निगेटिव होता तो ये ब्लैक डॉट कहां आता, इधर आता, समवेयर हियर। तो इस तरह से इसको बाय ऑब्जर्विंग द अपीयरेंस ऑफ दिस ब्लैक स्पॉट कि किधर है, आइदर टुवर्ड्स द कनकेव साइड और कन्वेक्स साइड ऑफ द हाइपरबोला, we can determine the optic sign.
तो पॉजिटिव के केस में यहाँ पर डेवलप हो रहा है, निगेटिव के केस में कहाँ डेवलप होगा, यहाँ डेवलप होगा। तो ये हो गया। अब आ जाइए दूसरा जो है जिप्सम प्लेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जिप्सम प्लेट को हम सेंसिटिव टिंट भी बोलते हैं, सेंसिटिव टिंट। Why it is called sensitive tint? क्योंकि इसमें जो जिप्सम है ना, उसके थिकनेस को ऐसा मेंटेन किया जाता है कि जो उसका इंटरफेरेंस कलर है दैट इज रेड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, एंड दिस रेड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज जस्ट कलर ऑफ द फ्रिंज, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का ये लास्ट कलर है, यू कैन से। वहां से फिर स्टार्ट होता है सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर ब्लू से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रेड है, इफ देयर इज राइज इन द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर, तो रेड से चेंज होकर के वो ब्लू हो जाएगा। और रेड के ठीक पहले फर्स्ट ऑर्डर का ही जो लोअर ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर में भी इधर जाएंगे हम लोग तो वो लो होगा, तो वो येलो होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसिटिव टिंट। दिस रेड ऑफ द फर्स्ट कलर, रेड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, इट इज सेंसिटिव कलर। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ। और सिमिलर चीज है, जैसा इसमें हम लोगों ने कहा आपको कि जिस क्वाड्रेंट में सिमिलर नेचर का वाइब्रेशन डायरेक्शन मिलेगा, वहां पे क्या होगा, देयर विल बी राइज इन द ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर। तो अगर ये मिनरल पॉजिटिव है, सब हम लोग पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, तो पॉजिटिव में इधर जो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है जेड होना चाहिए, शुड बी जेड, और इधर एक्स होना चाहिए। ये पोजीशन एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स का है और इधर ऑब्ट्यूज बाइसेक्ट्रिक्स का है। तो ये जिप्सम प्लेट में भी यही ओरिएंटेशन है। ये जो एरो है दिस इज जेड, यानी स्लो वाइब्रेशन डायरेक्शन है। तो स्लो और स्लो मिलेगा तो यहाँ ब्लू हो जाएगा, और यहाँ स्लो और यहाँ फास्ट, यहाँ येलो हो जाएगा। तो इफ द मिनरल इज पॉजिटिव एंड वी यूज जिप्सम प्लेट ऑफ दिस ओरिएंटेशन, then what will happen, blue tint or blue spot will appear in the quadrant where the convex side of the hyperbola is pointing, यानी convex side में blue होगा और concave side में yellow होगा पॉजिटिव के केस में। निगेटिव होने से ठीक उल्टा, यहाँ ब्लू सॉरी यहाँ येलो और यहाँ ब्लू होगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो है क्वार्ट्ज वेव को भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो ये अब यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स है उसको भी हमने दिखाया है। तो अगर मिनरल पॉजिटिव है तो क्या होगा कि इस साइड जो कन्वेक्स साइड है इस हाइपरबोला का, आइसोगायर का, इसमें रिंग्स क्या होता है, ये रिंग्स सेंटर की तरफ मूव करेगा और ये अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये जो रिंग्स हमारा है कॉन्टिन्यूअस रिंग, इट विल बी ब्लॉकन, ये ब्रेक कर जाएगा। और रिंग का मूवमेंट जैसे जैसे आप क्वार्ट्ज वेव्स को इंसर्ट कीजिएगा इन द स्लॉट, यही स्लॉट का डायरेक्शन है ना, इसमें आप जैसे जैसे इसको आप इंसर्ट कीजिएगा तो ये जो रिंग्स हैं, इट में बी कलर्ड रिंग ऑल्सो, इट में बी ब्लैक रिंग ऑल्सो। मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर आप यूज करते हैं तो रिंग्स विल बी ब्लैक। अगर आप डे लाइट यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, तो दीज ब्लैक रिंग्स विल बी रिप्लेस्ड बाय कलर्ड रिंग्स। तो एनीवे दीज रिंग्स will move towards the center, इसमें जिधर ये कन्वेक्स साइड है, आइसोगायर का जो ये हाइपरबोला है, जो कन्वेक्स साइड के रिंग्स जो हैं दे मूव टुवर्ड्स द सेंटर, और ये इधर साइड जो कनकेव साइड है इस हाइपरबोला का, उसमें रिंग्स जो हैं दे मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स we can determine the sign। तो पॉजिटिव के केस में इधर मूव करेगा, अगर ये निगेटिव है तो उल्टा होगा, ये इधर मूव करेगा और इधर कनकेव साइड वाले रिंग हैं वो सेंटर की तरफ मूव करेंगे। तो बस जस्ट बाय नोटिंग द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द रिंग टुवर्ड्स द कनकेव और टुवर्ड्स द convex side of the hyperbola, we can determine the positive sign। So this is all about the method of determination of optic sign of biaxial mineral। Thank you students very much।